Hello, welcome everyone. Myself Amit Maurya. Welcome to my new and amazing session in which we are going to solve previous year question of JMS of the chapter Current and Electricity. Our first question is MCQ single correct answer. The Kirchhoff first law is summation of current is equal to 0 and second law is the summation of IR is equal to summation of EMF where the symbol where the symbols have their usual meanings are respectively based on. क्या क्वेश्चन में कह रहा है द क्रिस्टॉफ फर्स्ट लॉ इज द समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू जीरो एंड क्रिस्टॉफ सेकंड लॉ इज द समेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ EMF where the symbol have their usual meanings are respectively based on. Option number A conservation of charge and conservation of momentum. Option number B conservation of energy and conservation of charge. Option number C conservation of momentum and conservation of charge. Option number D conservation of charge and conservation of energy. As we know that the Kirchhoff first law follow the rule that the summation of current is equal to 0. The conservation of charge in Kirchhoff law first law is the conservation of charge and Kirchhoff second law is the summation of current into resistance is equal to summation of EMF which is conservation of energy. Okay, so we can say that our option number D will be the right answer. Conservation of charge and conservation of energy. The Kirchhoff first law follow the conservation of charge and Kirchhoff second law follow the conservation of energy. So we can say that our option number D will be the right answer. Okay. चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार और देख लेते हैं नोट करके. Kirchhoff's first law is based on conservation of charge and Kirchhoff's second law is based on conservation of energy. जो हमारा Kirchhoff first law होता है is based on conservation of charge और Kirchhoff जो second law होता है is based on conservation of energy. Okay. So we can say that our option number D will be the right answer. The conservation of charge and conservation of energy. जो फर्स्ट किरचॉफ रूल होता है वह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है और सेकेंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. ओके, वी शुड प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. A material B has twice the specific resistance of area of A. A circular wire made of B has a twice diameter of wire made up of A dash. Then for the two wires to have the same resistance, the ratio of L by B divided by L by A of their respective length must be. क्वेश्चन में गिवन है सपोज एक मटेरियल ए है जिसकी रजिस्टिविटी रो है, ठीक है, और एक मटेरियल बी है तो मटेरियल बी की रजिस्टिविटी कितनी होगी 2 रो होगी. ओके, और नेक्स्ट क्या बोला है क्वेश्चन में द सर्कुलर कॉइल ऑफ ए हैज ट्वाइस डायमीटर ऑफ द वायर मेड अप ऑफ ए डैश. और क्वेश्चन में क्या बोला गया है जो ए का है क्या डायमीटर जो है मान लीजिए कि डी है तो बी का डायमीटर कितना होगा
2D होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में यह दिया गया है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? देन फॉर टू वायर टू हैव सेम रेजिस्टेंस, और दोनों का रेजिस्टेंस कितना है? सेम। फॉर द सेम रेजिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एल बाई बी डिवाइडेड बाई एल बाई ए ऑफ their respective length. Okay, in this question we have to find out L by B divided by L by A equal to question mark. Okay, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देखते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था, जो ए का एरिया है, ए बी का एरिया है, वह एक सॉरी जो बी का रजिस्टिविटी है वह ए के कितना है? ट्वाइस है। और गिवन था ये भी क्वेश्चन में, जो बी का डायमीटर है वह ए का कितना है? ट्वाइस है। ओके, और दोनों का रेजिस्टेंस क्या था? गिवन था क्वेश्चन में, इक्वल था। ठीक है, आप अगर केयर से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा, तो आंसर उतने ही अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें यह ज़रूरी है कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें हम। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन था? रेडियस दोनों का इक्वल है, तो हम ये इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं आर इक्वल टू होता है रो एल डिवाइडेड बाई ए, और ए और बी के लिए अलग अलग लिख के दोनों का इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक, और फिर उसके बाद एल बाई बी और एल बाई ए को एक साइड लेकर आ जाएंगे, और रो बाई ए डिवाइड बाई एल बाई बी डिवाइड बाई एल बाई ए इक्वल टू रो ए डिवाइड बाई रो बी इंटू एरिया को हम क्या ले लेंगे? एरिया को ले लेंगे पाई आर स्क्वायर, और आर को रेडियस को कैसे लिख देंगे? ए के लिए लिख देंगे रेडियस की वैल्यू आर ए डी बाई 2, और उसके लिए क्या लिख देंगे? आर बी डी 2D डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो दोनों का रेडियस आ जाएगा, तो रेडियस आ जाएगा तो पाई आर स्क्वायर, आर की जगह रेडियस की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू आ जाएगी? एल बी डिवाइडेड बाई एल ए की वैल्यू आ जाएगी। ओके, चलिए मैं एक बार बता भी दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे यहाँ एल बी डिवाइडेड बाई एल ए इक्वल टू रो ए डिवाइडेड बाई रो बी हम निकाल लेंगे। ठीक है, इंटू डी बी का डी बी स्क्वायर डिवाइड बाई डी ए का स्क्वायर। ठीक है, और जो हमारा क्या बोलते हैं डी बी की वैल्यू ए इसके कितनी है? डी ए के 2 टाइम्स है। ठीक है, और रो की वैल्यू कितनी है? ए रो एस का 2 टाइम्स है, तो हम लिख देंगे रो ए डिवाइड बाई 2 रो ए इंटू 2 डी ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी ए। हम डी ए स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ ऊपर कितना आएगा? 2 स्क्वायर 4, यहाँ 2 एक है, यहाँ रो रो कट गया, ऊपर 4 नीचे 2, जब कट करेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, एल बी बाई एल ए की रेशियो कितनी आ जाएगी? 2:1। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, एल बी डिवाइडेड बाय एल ए equal to 2:1. So we can say that our right answer will be option number D. Okay, we should proceed to our next question. A heater coil is cut into 2 equal parts and only one part is now used in the heater. The heat generated will now be, क्या क्वेश्चन में गिवन है? ए हीटर इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट, हीटर को 2 इक्वल पार्ट में कट किया गया, एंड ओनली वन पार्ट इज नाउ यूज्ड इन हीटर। देखिए जो हीटर था उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया,
और जो वन सिर्फ वन पार्ट को यूज्ड इन द हीटर। द हीट जनरेटेड विल नाउ बी। अब हीट जनरेटेड कितना वो हीटर करेगी। इनिशियली मान लीजिए कोई हीटर था, ठीक है, वह हीट फ्लो कर रहा था एच, और जब हीटर को हम टू इक्वल पार्ट्स में कट कर दिए और सिर्फ एक पार्ट को हम हीटर में यूज कर रहे हैं, तो हीट जो जनरेट करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, यही क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। ऑप्शन नंबर ए 4 टाइम्स होगी, ऑप्शन नंबर बी डबल हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हाफ्ड हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी 1/4 हो जाएगी। क्या होगी? जैसा कि हम जानते हैं कि हीट का फार्मूला कितना होता है, V² T/R। ये कैसे आया एक्सप्रेशन, अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं हीट इक्वल टू होता है, कितना होता है, हीट इक्वल टू कितना होता है, पावर इंटू टी होता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि पावर की वैल्यू कितनी होती है, V²/R इंटू टी। और एक मान लीजिए हीटर था, हीटर वायर, ठीक है, उसको हम हाफ पार्ट में कट कर दिए, ठीक है। तो मान लीजिए टोटल का रेजिस्टेंस कितना था, R था, और हाफ पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। इस सीरीज में है ना, सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस ऐड होता है। तो R/2 इस पार्ट का हो जाएगा, R/2 हाफ नेक्स्ट पार्ट का हो जाएगा, ठीक है। तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी निकल कर आई, R/2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। इनिशियली कितना था, H = V²T/R, और फाइनली कितना हो जाएगा, H' = V²T/R/2। तो हम लिख सकते हैं H' = 2H। तो हमारी जो हीट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर जब हम हीटर को हाफ पार्ट से यूज करेंगे तो हमारे हीट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ओके। क्योंकि रेजिस्टेंस रिड्यूस, हीट इंक्रीज, डबल, रेजिस्टेंस हाफ और हीट विल बी डबल, ओके। So we can say that our resistance will be halved and heat generated will be double, okay. So our right answer will be option number B, okay। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 2 वोल्टमीटर, वन ऑफ द कॉपर एंड अनदर ऑफ द सिल्वर। 2 वोल्टमीटर है, एक कॉपर का है एक सिल्वर का है, आर ज्वाइंट इन पैरेलल, पैरेलल में ज्वाइन किए गए। व्हेन ए टोटल चार्ज क्यू फ्लो थ्रू वोल्टमीटर्स इक्वल अमाउंट ऑफ मेटल आर डिपॉजिटेड। If the electrochemical equivalent of copper and silver are Z1 and Z2 respectively, the charge which flow through the silver voltmeter is। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 वोल्टमीटर है, एक कॉपर का है अनदर सिल्वर का है, दोनों पैरेलल में ज्वाइन है। व्हेन द टोटल चार्ज क्यू, चार्ज टोटल कितना है क्यू, ठीक है, टोटल चार्ज क्यू थ्रू दी वोल्टमीटर, द इक्वल अमाउंट ऑफ मेटल आर डिपॉजिटेड, जो मेटल जो डिपॉजिट होगा कॉपर का और सिल्वर का इक्वल अमाउंट पे डिपॉजिट होंगे। देन और क्या गिवन है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट दिया गया कॉपर और सिल्वर का Z1 एंड Z2, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। द चार्ज विच फ्लो थ्रू द सिल्वर वोल्टमीटर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वह हमें फाइंड आउट करना है, और टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी दी गई है, क्यू, ठीक है। मान लीजिए चार्ज सिल्वर के बार के थ्रू Q1 है और कॉपर के थ्रू Q2 है, तो Q1 + Q2 = टोटल चार्ज Q, ठीक है। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। एज गिवन इन क्वेश्चन द इक्वल अमाउंट ऑफ मास इज डिपॉजिटेड,
जो मास ऑफ कॉपर और सिल्वर का है इक्वल अमाउंट पे डिपॉजिट है। तो हम जानते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ क्या था, मास इक्वल टू जेड इंटू क्यू। ठीक है, ठीक है। तो हम यह कर सकते हैं जेड जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चार्ज के। जब हम रेशियो ले लेंगे Z1/Z2 इज इक्वल टू Q2/Q1। ठीक है। और और क्या क्वेश्चन में गिवन है, टोटल चार्ज की वैल्यू क्यों गिवन है, और चार्ज ऑफ सिल्वर Q1 और चार्ज ऑफ कॉपर एक Q2, ठीक मान लीजिए। ठीक है। और जब हम क्या करेंगे आगे, Q2 से डिवाइड कर दिए इस इक्वेशन को। ठीक है, तो हमें ये एक्सप्रेशन आया। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, Q2 की वैल्यू निकालनी है। तो फिर इसको क्या कर देंगे, इस एक्सप्रेशन को Q2 के इस साइड ले जाएंगे और इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या निकल कर आ जाएगा, Q2 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार और देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ मास इक्वल टू जेड इंटू क्यू। ठीक है, तो हम इसको यह कर सकते हैं जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, चार्ज की। तो हम Z1/Z2 इक्वल टू Q2/Q1 लिख सकते हैं। ठीक है, और टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी है, क्यों है, तो हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो चार्ज ऑफ कॉपर प्लस चार्ज ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो हमें इसमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, चार्ज ऑफ सिल्वर जिसकी वैल्यू कितनी है, Q2 है। ठीक है, तो हम मान लीजिए टोटल ये जो एक्सप्रेशन है इसको Q2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। हमें क्या निकालना है, Q2 निकालना है। Q2 को मान लीजिए ये ब्रैकेट है, Q2 को उस साइड ले जाएंगे और इस Q को इस एक्सप्रेशन से डिवाइड कर देंगे, तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर Q2 इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 1 प्लस Z2/Z1। ठीक है, ये Q1/Q2 की जगह हम क्या लिख दिए, Z2/Z1 फ्रॉम दिस इक्वेशन। ओके, फाइनली वी गेट आवर आंसर। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, Q2 इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 1 प्लस Z2/Z1 is the our right answer, which is option number A is the correct answer। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज़ 150 इक्वल डिवीज़न। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जिसमें कितने हैं, 150 इक्वल डिवीज़न है। इफ करेंट सेंसिटिविटी इज 10 डिवीज़न पर मिली एम्पेयर, जो करेंट सेंसिटिविटी है वह कितना है, 10 डिवीज़न पर मिली एम्पेयर। अब एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी इज 2 डिवीज़न पर मिली वोल्ट। in order that each division reach 1 volt, the resistance in ohm to be connected in series with the coil will be, we have to find out resistance in ohm needed to be connected in series with the coil will be। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ। तो हमें क्या फार्मूला होता है, R इक्वल टू होता है V डिवाइडेड बाई IG माइनस G। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में ना G की वैल्यू गिवन है, ना V की वैल्यू गिवन है, ना IG की वैल्यू गिवन है। हमें सबको क्या करना होगा, फाइंड आउट करनी होगी सभी की वैल्यू। ओके, as we know that G जो हमारा G होता है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इक्वल टू करेंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो करेंट सेंसिटिविटी कितनी दी गई है, 10 दी गई है,
ठीक है। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी दी गई है 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट और करंट सेंसिटिविटी 10 डिवीजन पर मिली एम्पेयर। जब डिवाइड करेंगे तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 ओम। नोट कर लीजिए जी की वैल्यू कितनी आई है 5 ओम। ओके, हमें इस क्वेश्चन में जी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब चलिए हम इस क्वेश्चन में आई जी की वैल्यू निकालते हैं। आई जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आई जी जो होता है करंट इक्वल टू होता है थीटा डिवाइडेड बाई करंट सेंसिटिविटी। थीटा क्या हमारा है, ये डिवीज़न है। कितने डिवीज़न है 150 और करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू कितनी है 10, कितनी है 10 डिवीज़न पर मिली एम्पियर। जब इसको हम 150/10 कर देंगे तो हमें आई जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 मिली एम्पियर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी आई जी की वैल्यू, नोट कर लीजिएगा इस बात को आप लोग। आई जी इक्वल टू 15 मिली एम्पियर। ओके, विच इज़ इक्वल टू 15 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ओके, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है वोल्टेज। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन ऑर्डर दैट ईच डिवीजन रीच 1 वोल्ट। ईच डिवीजन कितना मेजर कर रहा है 1 वोल्ट। ठीक है, तो कितने डिवीजन है टोटल 150 डिवीजन है। तो 150 डिवीजन कितने वोल्ट मेजर करेगा 150 वोल्ट। ठीक है, तो V की वैल्यू कितनी आ गई 150 वोल्ट आ गया। ओके, जैसा कि हम जानते हैं कि R इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आई जी माइनस जी। हमने G की वैल्यू कितनी निकाला है 5 ओम और V की वैल्यू 150 वोल्ट। आई जी की वैल्यू कितनी आई थी 15 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर। ठीक है, फाइनली सॉल्व करने के बाद हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9995 ओम। ओके, सो वी कैन से दैट आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी विच इज 9995 ओम। ओके, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार और देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना होता है करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू कितनी दी गई थी 10 और वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू 2, तो डिवाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आ जाएगा 5 ओम। आई जी इज़ द फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट, किसके बराबर हो जाएगा थीटा डिवाइड बाई आई एस क्या है करंट सेंसिटिविटी, थीटा क्या है टोटल डिफ्लेक्शन। ठीक है, और भी कितना है वोल्टेज टू बी मेजर 150। ईच डिवीजन 1 वोल्ट मेजर कर रहा है तो 150 डिवीजन कितने मेजर करेंगे 150 वोल्ट, सच दैट ईच डिवीजन रीड 1 वोल्ट। तो फाइनली हमें कोई आंसर हमारा कितना आ जाएगा 9995। कहाँ से आंसर आया बाई द हेल्प ऑफ फार्मूला ऑफ वोल्टेज and the resistance of galvanometer and resistance and the current flow through galvanometer relation which is R equal to V divided by IG माइनस जी। इस फार्मूले में हम सभी G की वैल्यू V की वैल्यू IG की वैल्यू रख देंगे तो हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी which is equal to 9995 is the our right answer. Okay, our next question is MCQ single correct answer. The resistance of hot tungsten filament is about 10 times the cold resistance. What will be the resistance of 100 watt and 200 volt lamp when not in use? क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए रेजिस्टेंस ऑफ हॉट
टंगस्टन फिलामेंट इज 10 टाइम्स द कोल्ड रेजिस्टेंस। जो हॉट टंगस्टन का रेजिस्टेंस है वह 10 गुना है किसके? कोल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ 100 watt and 200 volt lamp when not in use? Okay, we know that power equal to होता है वोल्टेज इंटू करंट, और हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज को I इंटू आर। तो हम इसको कर सकते हैं पावर इक्वल टू करंट का स्क्वायर इंटू आर, और इसको हम I की जगह कितना लिख देंगे, V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इंटू आर। तो इंटू आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर से आर को कैंसिल करेंगे तो हमारा पावर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। वोल्टेज की जगह हम लिख देंगे 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, पावर की वैल्यू कितनी है 100 वाट। ठीक है, तो हमें क्या निकल कर आ जाएगा, हमारा आंसर 400। किसकी वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, क्या क्वेश्चन में गिवन था, रेजिस्टेंस ऑफ हॉट टंगस्टन फिलामेंट इज 10 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ कोल्ड। तो ये हमारे किस चीज़ की रेजिस्टेंस है, हॉट टंगस्टन की रेजिस्टेंस है, कि जो कि कितनी निकल कर आई है 400 ओम। जब हमारे हॉट टंगस्टन की रेजिस्टेंस 400 ओम है, जो कि कोल्ड टंगस्टन के रेजिस्टेंस से कितने हैं 10 टाइम्स है, तो रेजिस्टेंस ऑफ कोल्ड टंगस्टन का कितना होगा, 40 हो जाएगा, 40 ओम। ठीक है, so we can say that our right answer will be option number B, which is equal to 40 ohm, the resistance of cold tungsten filament, which is equal to 40 ohm. Okay, so we should proceed to our next question. An energy source will supply a constant current into the load if its internal resistance is। क्वेश्चन में क्या गिवन है, एन एनर्जी सोर्स विल सप्लाई ए कांस्टेंट करंट। जो एनर्जी सोर्स है हमारा वह कांस्टेंट करंट को सप्लाई कर रहा है इनटू दी लोड इफ़ इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, जब एनर्जी सोर्स हमारा क्या कांस्टेंट करंट को फ्लो कर रहा है इनटू द लोड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए very large as compared to the load resistance। option number B equal to the resistance of load। option number C non-zero but less than the resistance of load। option number D 0। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। एज वी नो दैट दी EMF equal to I in bracket small r plus capital R, where capital R is the resistance, small r is the internal resistance, I is the current supply। ठीक है, और ये क्या हमारा EMF है। तो हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, I इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R। इंटरनल रेजिस्टेंस R इज 0। ठीक है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस R हमारा 0 होगा तभी कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा। ठीक है, सो वी कैन से दैट करंट इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R, और वहाँ पे स्मॉल रेजिस्टेंस जो होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तब जाके हमारी कांस्टेंट करंट फ्लो होगी, विच इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ओके,
So our right answer will be option number D. The internal resistance will be 0. ठीक है, ओके. Our next question is, a thermocouple is made from two metals, antimony and bismuth. A thermocouple is made from two metal. जो हमारा थर्मोकपल है दो मेटल से मिलके बना हुआ. कौन कौन से मेटल? एंटीमोनी एंड बिस्मुथ. If one junction of the couple is kept hot and other is kept at cold, then the electric current will be. जो हमारा थर्मोकपल है दो मेटल से बन के बना हुआ है. कौन कौन से? एंटीमोनी और बिस्मुथ से. और एक जो जंक्शन है हमारा वह केप्ट किया गया कहाँ? हॉट. हॉट है. और दूसरा कितना है? क्या है? कोल्ड है. देन वी हैव टू फाइंड आउट an electric current will. Option number A, flow from antimony to bismuth at the hot junction. Option number B, flow from bismuth to antimony at the cold junction. Option number C, now flow through the thermocouple. Option number D, flow from antimony to bismuth at the cold junction. जो हमारा एंटीमोनी है वह कहाँ पर है? एंटीमोनी केप्ट एट हॉट एंड बिस्मुथ इज केप्ट एट कोल्ड. सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक करंट जो होगा हमारा फ्लो होगा फ्रॉम द एंटीमोनी टू बिस्मुथ एट द कोल्ड जंक्शन. चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं. एट कोल्ड जंक्शन करंट फ्लो फ्रॉम एंटीमोनी टू बिस्मुथ because current flows from metal occurring later in the series to metal occurring earlier in the thermoelectric series. जो at the cold junction current flow from antimony to bismuth, जो हमारा current का flow होगा antimony to bismuth होगा because current flow from metal occurring later in the series to the metal occurring earlier in the thermocouple series. ठीक है, जो मेटल हमारा occurring in series, the metal occurring later in the series to the metal occurring in earlier in the thermocouple series. Okay, so our right answer will be option number D. The current flow from antimony to bismuth at the cold junction. Our next question is, an electric bulb is rated to 20 volt 100 watt. The power consumed by it when operated on 110 volt will be. Electric bulb is rated to 120 volt. ठीक है, and 100 watt. The power consumed when it operated on 110 volt. ठीक है, देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. जैसे कि हम जानते हैं पावर इक्वल टू होता है V²/R. ठीक है, तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. V की जगह हम लिख देंगे 220 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर कितना? 100 वॉट. इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, विच इज इक्वल टू, जो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल कर आएगी कितना आएगी? 484. ओके, ओम. 484 ओम. ओके, फिर हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे अपना. क्या लिखेंगे? पावर की फाइंड आउट करनी. पावर इक्वल टू V2 की स्क्वायर डिवाइडेड बाई R. जो V2 की वैल्यू हमारी दी गई कितनी है? 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई है? 484. ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पावर की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, विच इज इक्वल टू 25 वाट. ओके,
चलिए मैं आप लोगों को एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। इनिशियली जो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 220 के स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर की 100। द पावर कंज्यूम व्हेन ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट इज। पावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कब, जब ऑपरेट हो रहा है थ्रू दी 110 वोल्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाई 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हमारी निकल कर आई है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट होकर आ जाएगी, फाइनल पावर कंज्यूम, ठीक है, विच इज इक्वल टू 25 वाट। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी power equal to 25 watt. So our right answer will be option number C, which is equal to 25 watt. Power equal to 25 watt. Okay. चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट इज 100 ohm at temperature of 100 degree Celsius. If its temperature coefficient of resistance is 0.05 per degree Celsius, its resistance will become 200 ohm at the temperature of। क्या इस क्वेश्चन में गिवन है रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट बल्ब विच इज 100 ohm at the temperature 100 degree Celsius. If its temperature coefficient is 0.05 per degree Celsius, its resistance will be 200 ohm at what temperature। ओके, उस टेम्परेचर को हमें फाइंड आउट करना है जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी 200 ओम। ओके, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है आर नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू टी टेम्परेचर। ओके, एक बार हम फर्स्ट इनिशियल एक्सप्रेशन के लिए हम ये लिख लेंगे, ठीक है, जब टेम्परेचर हमारा कितना था 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी 100 ओम। और फाइनली हम क्या लिखेंगे, जब हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू 200 ओम है तब हमें क्या फाइंड आउट करना है टेम्परेचर की वैल्यू। और हमारे जो अल्फ़ा की वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन है विच इज़ अल्फ़ा इक्वल टू 0.005 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब दोनों इक्वेशन में हम वैल्यू रख के डिवाइड कर देंगे एक दूसरे से, यहाँ ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाएगा, फिर फाइनली जो हमारे टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, टेम्परेचर T इक्वल टू 400 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए हम नोट को भी पढ़ लेते हैं। वी मे यूज दिस expression as an approximation because the difference in the answer is appreciable for accurate results. One should use r equal to r naught e की पावर अल्फा डेल्टा टी। ओके, जो हमारे टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ गई 400 डिग्री सेल्सियस, जब हमारा रेजिस्टेंस कितना था 200 ओम। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी विच इज इक्वल टू 400 डिग्री सेल्सियस व्हेन आवर रेजिस्टेंस बिकम 200 ओम, ठीक है। ओके, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ए बैटरी is used to charge a parallel plate capacitor till the potential difference between the plates becomes equal to the electromotive force of battery. The ratio of the energy stored in the capacitor and the work done by the battery। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए बैटरी इज यूज्ड टू चार्ज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ए बैटरी
क्या गिवन है? ए बैटरी इज यूज टू चार्ज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। ए कैपेसिटर till the potential difference between the plate become equal to electromotive force. बैटरी इज यूज टू चार्ज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बैटरी का यूज किया जा रहा है किस लिए? चार्ज करने के लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तब तक यूज किया जाएगा जब तक जो हमारी किसकी वैल्यू, जो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बराबर हो जाए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ बैटरी। तब तक वह बैटरी चार्ज करेगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड द वर्क डन बाय द बैटरी विल बी। ओके, जैसा कि हम जानते हैं वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है? किसके बराबर? एनर्जी स्टोर प्लस एनर्जी लॉस, ठीक है। एनर्जी स्टोर की वैल्यू कितनी होती है? हाफ सी बी स्क्वायर प्लस एनर्जी लॉस हाफ सी बी स्क्वायर। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी बी स्क्वायर, ठीक है। ये नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, क्या फाइंड आउट करना था? रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय वर्क डन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू वर्क डन, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ सी ई स्क्वायर। ई क्या है? EMF। जब तक वोल्टेज की वैल्यू EMF के बराबर ना हो जाए तब तक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या करना है? चार्ज। तो हाफ सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, सी स्क्वायर कट जाएगा। तो जो हमारे एनर्जी स्टोर्ड और वर्क डन बाय एनर्जी का रेशियो कितना आ जाएगा? 1:2, विच इज इक्वल टू दी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द आवर राइट आंसर। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार और देख लेते हैं। रिक्वायर्ड रेशियो, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय बैटरी, हाफ सी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी ई स्क्वायर। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को तब तक चार्ज करना है जब तक पोटेंशियल EMF के बराबर ना हो जाए। तो हम इसको बोल सकते हैं हाफ सी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। जब दोनों का हम रेशियो ले लेंगे तो सी स्क्वायर कट जाएगा। जो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर डिवाइडेड बाई वर्क डन बाई बैटरी इज इक्वल टू 1:2 इज द आवर राइट आंसर, एज V इक्वल टू E, potential difference equal to EMF. Okay, so our right answer will be option number A, 1:2. Okay.